continue the topic sorting materials into groups. This is the lesson 5, and in previous video we have studied about the, what are these? Yes, about the materials, their classification, and what are the advantages of classification. Okay, so in this video we will study about the properties of the materials. All the materials have some specific properties, and we use different things according to our requirement on the basis of their properties. Okay, like we wear cotton clothes in summer. Why? Because we feel cool. Because cotton is, we feel comfortable to wear the cotton because cotton is light in color and the sweat can easily evaporate. हमें गर्मी कम लगती है क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है. ज़्यादा हीट को क्या कर देता है? लाइट कलर का होता है कॉटन क्लोथ्स लाइट कलर के अच्छे लगते हैं. तो लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, तो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड वी फील कंफर्टेबल एंड कूल. और जो पसीना आता है वो भी इजीली इवेपोरेट हो जाता है. सो वी प्रेफर टू वियर द लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड इन विंटर. Obviously, in winter we wear the woolen clothes. Okay, because woolen clothes absorb the heat. Heat को absorb करता है, हमारी body heat को बाहर नहीं जाने देता है. So all the objects have some specific properties. On the basis of their properties, we use different things. Okay. So in this video, we will discuss some properties of the materials. On the basis, in previous video I told you, on the basis of these properties we can classify the materials into the groups. We can sorting group में हम उसको arrange कर सकते हैं. Okay, so these properties are appearance. Appearance means कि वो object दिखने में कैसा है, shining है या फिर dull है. तो इस term को क्या बोला जाता है? Appearance. Appearance means how that object looks. Okay, कैसा वो दिखाई देता है. Second is hardness. Hardness, जो substance जो soft होते हैं वो तो easily scratch करने से, press करने से दब जाते हैं. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो हार्ड होते हैं, जिनको अगर हम दबाएंगे भी तो भी वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो हार्ड है. तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? हार्डनेस. ट्रांसपेरेंसी, जिसमें से लाइट पास हो जाती है, कितना अमाउंट पास होता है, दिस टर्म इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. ओके. आफ्टर दैट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, कोई मटेरियल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम वाटर में डाल रहे हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व मीन्स मिक्स हो जाना, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? सॉल्युबल. तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्टिंग करके ग्रुप में कर सकते हैं. वी कैन अरेंज द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप्स. ओके. आफ्टर दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज फ्लोटिंग और सिंकिंग. फ्लोटिंग, हमने कोई पानी लिया, ओके, कंटेनर में पानी लिया, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालेंगे, लाइक वुड डाल दिया, प्लास्टिक डाला. तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि फ्लोट करते हैं. फ्लोट का मतलब है तैरना, ऊपर रहते हैं सरफेस के पानी में. ओके. और सिंक मतलब डूबना, जो कि बॉटम में चले जाते हैं. ओके. तो फ्लोटिंग, पानी के ऊपर फ्लोट करना, तैरना, और सिंकिंग, डूब जाना. So this is the property of the material. So all these are the properties. On the basis of these properties we can sorting the materials into groups. Okay. Now we read this only today in this video. Only we will discuss only three properties that are appearance, hardness and transparency from your book. So let's start to read the book. Okay. Children, now open page number 40 and see the properties. Topic is properties of materials. I already explained about all these properties
appearance, hardness, transparency. Okay, so now see in your book here about the appearance. These are the properties. On the basis of these properties we can classify or sorting the materials into groups. Okay, appearance, see in the appearance different kind of materials such as wood, metal, plastic, glass and pottery. Okay, look different from each other. ये जितने भी मटेरियल्स बताए, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. Each different metal such as iron, copper, aluminium and zinc appear different from each other. और ये metals हैं, iron, copper, aluminium and zinc. All these are metal. Okay, ये भी एक दूसरे से अलग है. At the same time they have some similarities too. तो अलग होते हुए भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं. सिमिलरिटीज़ मतलब वो किसी ना किसी चीज़ में कॉमन है. ओके, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब में सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिमिलरिटीज़. लुक हियर इन द नेक्स्ट पेज. हियर दीज आर द मेटेलिक चेन. ओके, एंड हियर द एल्यूमिनियम फॉइल एंड दीज आर द स्टील यूटेंसिल्स. सो मेटेलिक चेन, एल्यूमिनियम फॉइल एंड दीज स्टील यूटेंसिल्स, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स. मेटल से बने हुए हैं, बट इनमें कॉमन क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है? दे हैव देयर अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स वो कैसे दिखाई देते हैं. दे हैव शाइनी अपीयरेंस. इनका अपीयरेंस दिखने में ये कैसे करते हैं, शाइन करते हैं, चमक होती है इनके अंदर, और इसी चमक को क्या बोला जाता है, लस्टर. ओके, सो मेटल्स आर लस्ट्रस. ये जो लस्ट्रस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, शाइनी अपीयरेंस, चमक. सम मटेरियल्स अपीयर टू शाइनी. कुछ तो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, और शाइनी अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, लस्ट्रस. वाइल अदर्स आर डल. लेकिन जिनका अपीयरेंस डल होता है, जिनमें अपीयरेंस शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, रफ होता है, उसे क्या बोला जाता है, डल. ओके, लाइक हेयर द सी इन द पिक्चर वुड, chalk and stone. They do not have the shiny appearance. इनका appearance कैसा है, dull है. So we can take this property, appearance property, and we can sorting out the materials on this property. Okay, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमारे पास मेटेलिक चेन भी है, एल्यूमिनियम फॉइल भी है, स्टील यूटेंसिल भी है, चॉक भी है, स्टोन भी है, वुड भी है, और ये सारे एक साथ हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं. और हमको कहा जाता है कि इसको सॉर्ट करिए, आप ग्रुप में डिवाइड करिए. तो आप इसकी कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, अपीयरेंस की. ओके, शाइनी अपीयरेंस जिसका होगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे, और जिसका डल अपीयरेंस होगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे. ओके, आई थिंक यू दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू. आफ्टर देन we come to the next property, that is here activity 4 is given and you fill this activity yourself. Okay, I am giving the answer. Observe the things and complete the table. There in first column materials are given: steel spoon, wooden spoon, glass bowl, knife, cloth bag and coin. Those materials which have the shiny appearance, you fill right here in the shiny appearance, and those materials which have the dull appearance, you write in the second column, dull appearance, right. Okay, so steel spoon have shiny appearance, so we write here. Wooden spoon is dull in appearance, so we write here. Glass bowl have shiny appearance, so we fill here, right. Knife have shiny appearance because knife is made up of स्टील, सो इट हैज़ मेटल का बना होता है, इसीलिए इसका शाइनी अपीयरेंस है, वी फिल हियर राइट. क्लोथ बैग इज डल अपीयरेंस, सो वी फिल हियर राइट. कॉइन हैज़ शाइनी अपीयरेंस, सो वी फिल हियर राइट. ओके, सो फिल दिस एक्टिविटी इन योर बुक. आफ्टर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस. Some materials cannot be pressed with hand or scratch or cut easily. Such materials are hard. जिन materials को हम ऐसे दबाने से, प्रेस करने से वो दबते नहीं हैं, ओके, कंप्रेस नहीं होते हैं, स्क्रैच नहीं होते हैं, या फिर उनको आसानी से काटा नहीं जा सकता है.
वी कांट कट देम ईजिली। सो उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? हार्ड। लाइक मेटल है, मेटल को हम नाइफ से नहीं काट सकते। ओके जैसे स्टील की स्पून है, उसको हम नाइफ से नहीं काट सकते। वुड होता है, उसको आप बहुत तेज़ दबाइए लेकिन वो आपसे कंप्रेस्ड नहीं होगा, स्क्रैच नहीं होगा, तो वो कैसा मटेरियल है? हार्ड है। ओके वाइल फॉर एग्जाम्पल वुड, ग्लास, अ पीस ऑफ स्टोन, मेटल की और आयरन नेल आर हार्ड मटेरियल्स। ये कैसे मटेरियल्स हैं? हार्ड मटेरियल्स। इन फैक्ट मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल्स है, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। आफ्टर देन other materials, some materials which can be compressed with hand or scratch or cut easily are soft। और जो आसानी से compressed हो जाते हैं, दबाने से वो दब जाते हैं, ओके स्क्रैच हो जाते हैं आसानी से, उनको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन के आइटम्स होते हैं लाइक पिलो है, पिलो को आप कंप्रेस करिए वो दब जाता है। स्पंज है, स्पंज को भी आप स्क्रबर जो होता है उसको दबाइए, ओके तो वो भी दब जाता है। तो दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल्स। अ मोर हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच और कट अ लेस हार्ड सब्सटेंस। ओके ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस को हम स्क्रैच नहीं कर सकते और उसको कट भी नहीं कर सकते हैं। ओके तो जो ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होगा ना, वो आसानी से किसी चीज़ को स्क्रैच भी कर सकता है। जो डायमंड है, डायमंड वो बहुत सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, दैट इज़ डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू कट द ग्लास। ये नॉन मेटल होता है डायमंड, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द कार्बन, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसीलिए इसको ग्लास को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ड सब्सटेंसेस मेटल्स एंड स्टोन्स आर यूज टू मेक कटिंग टूल्स। तो जितने भी हार्ड सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं उनको हम यूज़ किया जाता है कटिंग टूल्स की फॉर्म में। तो सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। ओके वी हैव डिस्क्राइब द टू प्रॉपर्टीज अपीयरेंस एंड हार्डनेस। सो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। ओके सो आफ्टर देन next property, that is transparency. We are not able to tell what is inside a wooden or metallic box without opening it. Okay why are window pane in house and offices generally made of glass? Why does a shopkeeper keep toffees and other sweets in glass jar? All these questions are for you. wooden और metallic box में से हमें नहीं दिखाई देता है, okay इसीलिए डोर वगैरह इनके बने होते हैं। लेकिन जो विंडो पैन होते हैं हाउसेस में और जनरली ऑफिसेस में होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं। या फिर जो शॉपकीपर है वो टॉफ़ीज़ को ग्लास के जार में या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जार में रखता है, जिससे कि ईज़िली जो भी जार के अंदर रखा हुआ है आइटम्स वो हमें दिखाई दे जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंसी, जिसमें से हमें दिखाई दे जाता है। okay after then turn the page number 42. So the answer is this is due to the reason that light can easily pass through glass and we can see through it. तो इसका एक ही रीज़न है कि जिन सब्सटेंस में से लाइट पास हो जाती है वो उसमें से हमें आसानी से दिखाई देता है, और उन ऑब्जेक्ट्स को, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट materials. Okay so this glass is transparent. ये जो ग्लास है कैसा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट। जो जिसमें आइटम्स रखे हुए हैं ग्लास जार के अंदर इट इज़ ट्रांसपेरेंट। विंडो पैन ग्लास के बने होते हैं जिससे हमें आसानी से दिखाई देता है दूसरी साइड में क्या है, उसका व्यू क्या है, रूम से बाहर हमें दिखाई देता है। तो ये किस विंडो पैन किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में से लाइट आसानी से पास हो जाती है। आफ्टर देन ऑन द अदर हैंड देयर आर मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, जिन मटेरियल में से लाइट पास नहीं होती है लाइक वुड, मेटल। वुड का डोर जो है वुड का बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसे बंद कर देते हैं तो दूसरी साइड का हमें नहीं दिखाई देता है। ओके तो ये इसका मतलब है कि जो लाइट है वो वुड में से, मेटल में से पास नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ओपेक,
OPQUE, opaque materials. Through these materials light cannot pass. Okay. After them there are still another kind of materials through which light can pass easily partially. Partially means थोड़ी बहुत. Okay. तो कुछ materials ऐसे हैं जिसमें से light थोड़ी बहुत पास हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है. तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ओके, व्हाट वी कॉल इट? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल थिन क्लॉथ, फ्रॉस्टेड मिस्टी ग्लास एंड ऑयल स्प्रेड पेपर. दीज मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. थिन क्लॉथ होता है, उसमें से लाइट थोड़ी बहुत पास होती है. फ्रॉस्टेड ग्लास, कुछ बाथरूम वगैरह के जो विंडोज़ वगैरह होती हैं वो फ्रॉस्टेड ग्लास की बनी होती हैं, वो बिल्कुल उसमें से क्लियरली नहीं दिखाई देता है. या फिर जो बटर पेपर है वो भी कैसा है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है. ओके, तो अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? ट्रांसपेरेंसी, जिसमें से लाइट पास हो जाती है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें से थोड़ी बहुत पास होती है. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, और जिसमें से बिल्कुल पास नहीं होती है. ओपेक मटेरियल्स. ओके, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ऑयल पेपर translucent material, and wood is opaque material. Okay, so now the activity, that is activity 5. In first column some objects are given and here transparency के बेस पर आपको classify करना है which materials are transparent, which are translucent and which are opaque. Okay, so in first, milk is opaque, water is transparent, oily paper translucent, iron sheet opaque, oxygen gas, it is present found in the air, so obviously we are able to see in the air, so oxygen gas, it means air is transparent. Aluminium foil, you know very well, aluminium foil which is used to wrap the food. आपने देखा होगा लंच बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉइल में फूड आइटम्स रैप करके लाते हैं, तो वो कैसा है? ओपेक है. मसलिन क्लॉथ बहुत ही थिन क्लॉथ होता है, that is translucent, and glass window pane, it is transparent. Okay, so today I discussed only 3 properties: appearance, hardness and transparency. So today's work is read these topics from your book. Okay, thank you.